Hello everyone. Today basically I would like to discuss about the traveling microscope, and mainly I would like to focus on how to use this traveling microscope. को देखो कि clearly you can observe the construction of this traveling microscope. There you can find out this is a compound microscope, and this is one of the lens through which you can observe any object, and at that side this is known as the eyepiece. Okay, and you will find this microscope is attached with this stand, and if I show you the back side of that stand, you will find that there are two scales. So I would like to show that one first. So this is the back side of this traveling microscope. Here you can observe clearly. देखो यहाँ के एक linear scale है which is in centimeter, और with this linear scale there is a vernier scale which is attached with this linear scale. दिखाई दे रहा है ना सभी को? ठीक है. अब देखो कि ये पूरा सिस्टम, this complete construction is based over this base part, and there are two screws. What is the function of this screw? By just rotating these screws we can level the whole system. We have to make the system in the horizontal condition with the table. Okay, so मैं बहुत जल्दी इसको दिखाऊंगा कि हाउ टू यूज़ दैट वन, क्योंकि मेरा मेन पर्पस इज टू हाउ टू टेक द डेटा यूजिंग दिस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप. देखिए व्हाई इट इज़ नोन एज द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये मूव कर पाएंगे. कहाँ मूव करते हैं? इट कैन मूव अलोंग दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कैसे मूव करेगा? देखो कि यहाँ पे एक स्क्रू है ना, दिखाई दे रहा है. इफ़ आई जस्ट लूज दिस वन, तो देखो इसको अगर घुमाऊंगा तो इसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है. बट इफ़ आई मेक टाइट इट हियर, ओके, इसको बहुत टाइट कर रहा हूँ, ठीक है. फिर इफ़ आई रोटेट दिस स्क्रू, देखो अगर देख पा रहे हो कि नहीं पता नहीं, बट इट इज़ मूविंग वेरी स्लोली, ठीक है. अब और इस डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो ये राइट साइड में मूव करेगा. सो थ्रू दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आई कैन मूव दिस माइक्रोस्कोप. और इसको मैं दिखा सकता हूँ कि इसको थोड़ा लूज करके, इसको अगर थोड़ा इधर, इफ़ आई जस्ट गिव सम सर्टेन फोर्स हियर, सो चलो फोर्स करके देखते हैं. देखो देखो मूव कर रहे हैं ना, हाँ, ठीक है. सो इफ़ आई प्लेस एनी ऑब्जेक्ट हियर, फॉर एग्जांपल इफ़ आई प्लेस दिस पेन हियर, चलो फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, हाँ दिखाई दे रहा है ना पेन. एंड देन आई कैन ऑल्सो रोटेट और द ओरिएंटेशन, आई कैन चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ दिस माइक्रोस्कोप. अब माइक्रोस्कोप it can take the image of any object which is in front of this lens, but if I just lose it here, इसको थोड़ा सा लूज कर देंगे तो ये देखो घूम गया, ठीक है. so I can just move along this direction, and then I can tight here. so if I tight, so देखो टाइट कर दिया मैंने. so I can just observe this pen from this eyepiece. So if I move this microscope along this direction, so I can catch the this end of that pen, and if I move this microscope along this direction, so I can catch another end. And from the difference between these two ends, I can measure the length of this object. So for that we have to use this scale. There is a same horizontal scale here. पिछले बार तुमने देखा था कि ये वर्टिकल स्केल है और इसका नीचे एक हॉरिजॉन्टल स्केल भी है. सो फ्रॉम दैट हॉरिजॉन्टल स्केल, जस्ट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्लाइड कैलिपर और वर्नियर कैलिपर, वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट which is placed in the horizontal direction. Similarly, if certain objects we have to measure, for example the diffraction of bar in Young modulus, I can show you the setup. The same traveling microscope you can observe there. This is the traveling microscope, and this is the Young modulus arrangement. So when we just touch some load with this hanger, so there is a diffraction. So how much diffraction will occur, we can measure through this traveling microscope. So basically I will show you how to take the data using the traveling microscope. And in your syllabus there are two experiments. One is the Young modulus, whatever I have shown you, and there are second experiment which is to find out the refractive index of water. For these two experiments you need to use this traveling microscope. तो आज मैं दिखाऊंगा कि traveling microscope
आपको डेटा कैसे लेते हैं। बेसिकली आई विल शो यू दिस वर्टिकल स्केल एंड हाउ टू टेक द डेटा। तो चलो फिर टेबल मिले, आई विल मूव टू द टेबल और इसी टेबल को अच्छी तरह से समझ लेंगे। सो व्हेन यू आर टेकिंग डेटा यूजिंग दिस माइक्रोस्कोप, फर्स्ट यू नीड टू नो हाउ टू यूज़ दिस 2 स्केल्स। और ये सभी को पता है कि हाउ टू यूज़ द स्लाइड कैलिपर और वर्नियर कैलिपर। द सेम प्रिंसिपल विल बी अप्लाइड ऑल्सो हियर। सो लेट्स टेक ए फर्स्ट लुक ओवर इट्स टेबल, हाउ टू टेक द डेटा। तो चलो इस टेबल को अच्छी तरह से एक बार ऑब्जर्व कर लो, देखो कि क्या लिखा हुआ है। सो हाउ टू टेक द डेटा, फर्स्ट यू हैव टू टेक द मेन स्केल रीडिंग which will be in centimeter, and you have to take the vernier reading, and the total reading is nothing but the main scale reading plus vernier reading into vernier constant. So first work, or you have to first do find out what is the vernier constant of this instrument. And I believe that you all know how to use the slide caliper. The same principle or same formula will be used to find out the vernier constant of this instrument also. So chalo first we would like to take और वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द वर्नियर कांस्टेंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। तो इसके लिए क्या करना होगा, चलो मैं इधर लिख रहा हूँ और उसके साथ साथ तुम्हें एक्सप्लेन भी करूँगा। सो वर्नियर कांस्टेंट क्या दिखाई दे रहा है, पहले देख लो एक बार, और एक बार देख लो कि इस पे दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ ए लीनियर स्केल, दिस इज़ द मेन स्केल, दिस इज़ द मेन स्केल, एंड विथ दिस मेन स्केल दिस इज़ द वर्नियर स्केल। एंड फॉरगेट अबाउट व्हाट एवर रिटेन हियर। स्टूडेंट्स कभी कभी गलती कर देते हो कि ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर देखो कि अगर देख रहे हो कि वर्नियर लिखा हुआ है, कुछ वैल्यू भी दिया हुआ है 0.1 mm करके। सो फॉरगेट अबाउट व्हाट एवर रिटेन हियर, यू हैव टू फाइंड आउट द वर्नियर कांस्टेंट यूजिंग द मेन फार्मूला ऑफ द वर्नियर कांस्टेंट। ठीक है, मैं दिखाऊंगा कि वर्नियर कांस्टेंट कैसे निकलते हैं। तो चलो कि मेन स्केल, अब इसको थोड़ा और भी ऑब्जर्व करोगे। सो पहले लिख लेते कि वर्नियर कांस्टेंट का फार्मूला क्या है। So observe this one. So I would like to write down that vernier constant दिखाई दे रहा है नहीं, अच्छा, vernier constant is equal to, चलो फोकस कर लेते एक बार, थोड़ा दिक्कत तो हो ही रहा है एक हाथ से कैच कर रहा हो दूसरे हाथ से लिख रहा हो। vernier constant is equal to 1 main scale reading minus 1 vernier scale reading। अब ये 1 main scale reading क्या है, what is the 1 main scale reading? मतलब ये जो लीनियर स्केल है ना, जो मेन स्केल है, दिस इज द मेन स्केल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिंगल डिवीजन, दिस इज द 1 मेन स्केल रीडिंग। ये बहुत सारा रीडिंग होगा। सो दिस इज इन सेंटीमीटर। सो इफ यू कैच फ्रॉम 1 to 2 सेंटीमीटर, हाउ मेनी ग्रेडेशंस आर देयर, यू हैव टू फाइंड आउट दैट वन। ओके, तो चलो एक बार देख लेते हैं डायरेक्ट, व्हाट इज द मेन स्केल। मतलब मेन स्केल में एक छोटा सा घर की जो वैल्यू है, व्हाट इज इट। So now count from this 5 to 6, right? So from this mark 5 to this mark 6, how many gradations are there? छोटा बड़ा मिलके कितना टोटल नंबर ऑफ लाइन्स आर देयर, कितना दिखाई दे रहा है। देखो अगर बड़ा लाइन को पकड़ोगे, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो कि ये बड़ा लाइन, 2 बड़ा लाइन के बीच में एक छोटा लाइन है। सो कुल मिला के कितना लाइन है, 5 to 6, एक बड़ा लाइन लोगे कि 10 लाइन है। बट इफ़ यू कंसिडर छोटे लाइन्स भी, सब लाइन मतलब जितने सारे लाइन्स है छोटा बड़ा मिलके, यू विल फाइंड देयर आर 20 मार्क्स और 20 डिविजन्स इन दिस 1 सेंटीमीटर। सो एक डिवीजन की वैल्यू कितना होगा, तो मैं इधर लिख रहा हूँ, देखो। सो इन दिस मेन स्केल, चाहे मैंने दिखाया कि 5 से 6 में, सो देयर आर 20 डिवीजन। सो देयर आर, आई कैन राइट 20 डिवीजन, द वैल्यू ऑफ 20 डिवीजन इज 1 सेंटीमीटर, है ना। 5 to 6 इज 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के बीच में 20 डिवीजन है। सो एक डिवीजन का वैल्यू कितना होगा, 1/20 सेंटीमीटर, और ये कितना होता है 0.05 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग राइट नाउ, सो मेन स्केल रीडिंग इज राइट नाउ 0.05 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वर्नियर स्केल रीडिंग, मतलब वर्नियर की एक छोटे घर की वैल्यू कितना है। तो चलो पता लगाते हैं कि कैसे करते हैं। तो चलो देख लेते हैं एक बार। तो चलो ये है वर्नियर स्केल, है ना, दिखाई दे रहा है सभी को, ये दिस इज द वर्नियर स्केल। एंड फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, ये जो लिखा है इसको भूल जाओ, ये कुछ नहीं है, ठीक है। सो देयर इज नो यूनिट, जस्ट लाइक द स्लाइड कैलिपर और वर्नियर कैलिपर, कुछ तो है नहीं। बट वन थिंग यू कैन फाइंड आउट, सो इफ यू
make your 0 with any one of the main scale reading, ठीक है. So if you count down how many gradations are there, how many lines are there, एकदम 0 से लेके छोटा बड़ा जितना lines है, you will find from 0 to this big, from this big line to this big line, you will find there are 10 division. So that means if it is 0, this is 10, this is 20, this is 30, this is 40, this is 50. Okay. So from 0 to 10 there are 10 lines. So each line is you have to count as a 1. क्या कैसे काउंट करना होगा, ये 0 1 2 3 4 5, ये एक बड़ा लाइन देख रहे हो, ये 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10, ऐसे ये 15, ये 20, इस हिसाब से यू हैव टू काउंट डाउन. ओके. सो डोंट यूज दिस 6.617 .28.83, ये सब भूल जाओ. ठीक है, इसके बारे में मत सोचना कि यू हैव टू काउंट हाउ मेनी लाइन्स आर देयर. यू विल फाइंड देयर आर 50 लाइन्स, 50 gradations or 50 divisions are there. So in the Vernier scale there are 50 division, but if you count carefully, this 50 division is matched with the 49 of the main scale division. मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि इसका जो 50 डिवीजन है, टोटल 50 डिवीजन है, छोटा बड़ा मिलके जितना सारे लाइन है, ये छोटा बड़ा मिलके जितना 50 डिवीजन ये मैच हो जाता है 40 डिवीजन के साथ, 49 डिवीजन के साथ. किसका? मेन स्केल रीडिंग का. ठीक है. सो आई विल राइट डाउन दिस वन. So what you have found out that the 50 Vernier scale division is equal to 49 main scale division. ठीक है. अब 1 Vernier scale division कितना होगा? 49 by 50 मेन स्केल डिवीजन. अब एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना है? 0.05 सेंटीमीटर. तो एक Vernier स्केल का डिवीजन कितना होगा? 49 by 50 इंटू 0.05 सेंटीमीटर. सो दिस इज द 1 Vernier scale reading. ये जो है ना 1 Vernier scale reading, we have found out its value is 49 by 50 into 0.05 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसको लिख लो इधर. इट इज 49 by 50 into 0.05 सेंटीमीटर. अब 0.05 सेंटीमीटर को कॉमन ले लो. सो 0.05 कॉमन ले रहा हूँ, 1 माइनस 49 by 50 सेंटीमीटर. सो इट इज 0.05 इंटू 1 by 50 सेंटीमीटर. सो ये कितना हो रहा है? 1 by 1000, दैट मीन्स 0.001 सेंटीमीटर. सो दिस इज द Vernier constant. So this is the Vernier constant of our traveling microscope. ठीक है. So now how to take, तो मैं इधर लिख सकता हूँ कि what is the Vernier constant. फर्स्ट यहाँ पे लिख ही लो. पहले you have to calculate that one, you have to show that one in your practical notebook. Then you have to write here the Vernier constant is equal to 0.001 centimeter for our traveling microscope, right? So now how to take the main scale reading. main scale reading कैसे लोगे देखो एक बार. चलो फिर वापस होते हैं इंस्ट्रूमेंट के पास. So first you have to check that where is my zero line of the Vernier. ठीक है. जीरो लाइन मेन स्केल की कौन सा लाइन के साथ मैच हो रहा है या कौन सा किस लाइन को ये थोड़ा सा पास करके जा रहा है. दिस लाइन विल बी द मेन स्केल रीडिंग. तो देखो इधर देखो, और भी मैं नज़दीक लेके आ रहा हूँ, देखने की कोशिश करो भाई. कोशिश मैं भी कर रहा हूँ फोकस करने की. ओके, क्यों नहीं हो रहा है भाई? ठीक है, देखो ये जो जीरो लाइन है ये है कि 4, ये 4, दिस इज 4.1 4. बड़ा लाइन को आई एम टेकिंग द बिग लाइन्स. दिस इज द 4.1, ये 4.2 4.3 4.5. सो देखो कि ये 4.5 लाइन को क्रॉस करके चला गया. जीरो ऑफ द Vernier 4.5 को क्रॉस कर रहे हैं, बट ये एक छोटे लाइन के बीच में फंस चुका है. सो ये छोटे लाइन की वैल्यू कितना है? 0.05. तो इसका वैल्यू कितना होगा? 4.5 प्लस 0.05. क्या 0.5 को क्रॉस कर रहा है? हाँ, थोड़ा सा तो क्रॉस तो कर ही रहा है. सो वी कैन टेक इट इज 4.5 प्लस 0.05 मतलब 4.05. सो माई मेन स्केल रीडिंग समझ में आ रहा है ना? मतलब जीरो लाइन किस लाइन के साथ मैच हो रहा है और किस लाइन को थोड़ा सा पास करके ऊपर जा रहा है. सो ये देखो ये जीरो लाइन एक छोटे लाइन के, ये छोटे लाइन के साथ मैच हो रहा है ना? सो इस छोटे लाइन का वैल्यू कितना होगा? ये तो 4 है और ये 4.5 है बड़ा लाइन, और उसके साथ और एक छोटा लाइन ये 0.05 है. So 4.05, the main scale reading becomes 4.0. So I can write here the main scale reading as
4.05, इट इज़ इन सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलो कि इसका वर्नियर रीडिंग ढूंढते हैं। सो फॉर दैट, टू फाइंड आउट द वर्नियर, you have to check very carefully which line of the vernier scale is almost matched with the any one of the line of the main scale। ठीक है, अब ढूंढ के देखो कि मेरे हिसाब से देखो 0, ये 5 जो 5th लाइन है, इट इज ऑलमोस्ट कोइंसाइड विथ दिस लाइन ऑफ द मेन स्केल। मेरे आंख में ये दिखाई दे रहा है, तुम्हारे आंख में दूसरा कोई दिख सकता है, मुझे उससे भी ज़्यादा लग रहा है मुझे ये वाला लाइन, वो जो 20 के नीचे वाला लाइन, ये है 10, ये है 15 एंड दिस इज 19th। सो 19th मेरे हिसाब से 90 और 20, मेरे हिसाब से जो 19th लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल की मैं बोल रहा हूँ, वर्नियर स्केल की जो 19th लाइन, देखो ये ऑलमोस्ट मैच हो चुका है किसके साथ, इस लाइन, मेन स्केल की इस लाइन के साथ। सो वर्नियर रीडिंग विल बी, अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी 19। ठीक है, तो चलो इसको लिख लेते हैं। सो राइट नाउ माई वर्नियर रीडिंग इज 19। सो व्हाट विल बी द टोटल रीडिंग देन? टोटल रीडिंग इज द मेन स्केल रीडिंग। व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग? इट इज 4.05 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर रीडिंग इज 19 and then multiply with its vernier constant which is 0.001. So whatever you will find, this is your result. Okay, actually it is 4.05 plus it is 0.019, right? So you will get, if I am right, it is yeah. So your result will be, it is 4.069. So this is the way how to use this traveling microscope and how to take the data. Okay, hope you have understood that one. If you have any questions, you just write down in the comment box, and I will also show you how to take the data for refractive index of water in the next video.